With Aarti made under the banner of Rajshri, Sri Tarachand Barjatya started the trend of making clean and healthy films. He ushered in the era of melodious music and purposeful, family-oriented, wholesome entertainment that stirred the hearts of the audience. For the most sensational debut of the year goes to director Suraj Barjatya for Maine Pyar Kiya. Maine Pyar Kiya, I now request the maiden Shatrughan directorial Sinha venture to of give the Suraj award Barjatya to this young electrified man the screen, whose film has made drawing history. unprecedented Suraj crowds Barjatya. and winning critical acclaim. Maine Pyar Kiya is something which I feel should have happened to me. And I owe a lot to all the RK films that I've seen. I have learnt. I love them. Thank you. The film was bestowed with 5 other prestigious awards. Best New Face, Bhagyashri. Best Lyricist, Asad Bhopali, received by Rajkumar Barjatya. Best Playback Singer, S.P. Balasubramaniam. Best Music Director, Ram Lakshman. And, above all, Filmfare's Best Film of the Year, received by Kamal Kumar Barjatya. Rajshri's latest offering, Hum Aapke Hain Kaun, sustains that tradition. Yet another magnum opus from director Suraj Barjatya. A tender musical love story and family drama. A few exciting moments captured during the making of this film are brought alive for your pleasure.
आपके आपके हैं कौन। That is not all. Some more glimpses are in store for you. Most of us are excited at the very opportunity to watch the film shooting. What happens during shooting? What takes place before a shot is scanned? Thank you. Shooting a film is no mean task. A scene that lasts for a minute on the screen can take almost a day to be shot. 8 to 10 times of raw film is exposed, edited, and then presented before you. It is not only the investment of millions of rupees, but also the hard labor and sweat of thousands that make this film a reality. ओवरहैंड में मजा नहीं आएगा इसमें। लेना ओवरहैंड में मजा आएगा यार। बिल्कुल मजा आएगा। अंडर आर्म नहीं है, अंडर आर्म से खेलने की आती है। नहीं अंडर आर्म नहीं, ये इस तरह नहीं बट पीछे बॉलिंग करना तू। नहीं उधर पत्थर है यार। नहीं यार, अरे नहीं है, चुप कर। आउट है तेरी। वन टिप आउट है। हाँ। 4 बॉल हो गए चलो।
गोली में मजा नहीं आता है। दो टप्पे खा गई थी ऊपर। नहीं पकड़ा दो। ओवर। अरे Members of the unit manage to find ways and means of recreation to relax whenever an opportunity comes their way during long schedules of shooting. Fun and frolic ease tensions and help to offload work pressures. And when back to work, it is with renewed vigor, enthusiasm and dedication. आपकी कृपा से शुभ घड़ी आई, जीजी और जीजा को बधाई हो बधाई। सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। वाह वाह राम जी, वाह वाह राम जी, वाह वाह राम जी। आज से तकरीबन 1 साल पहले जब पिक्चर की शुरुआत हुई थी तो हम ऊटी में थे। तो शाम को हम सब लोग बैठ के खाना खा रहे थे तो राज बाबू ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उनसे पूछा गया था कि हम आपके हैं कौन के बारे में कुछ बोलिए। तो उन्होंने कहा कि इसमें से कौन निकाल दीजिए। तो पिक्चर का टाइटल बेशक हम आपके हैं कौन है, मगर पूरी पिक्चर की जो एक सद्भावना है या भावना है वो है कि हम आपके हैं। United Nations has declared 1994 as the year of the family. In this connection, our Prime Minister has reiterated the importance of family ties. Inspired by these lofty ideals of our family traditions, this film highlights and upholds the Indian family values and our rich cultural heritage. Young and dynamic Suraj represents the present generation of filmmakers. Let us have a tete-a-tete with him to know what he thinks about our traditions, how he manages to bridge the gap between our social, cultural traditions and the changing values of the present. आप शायद ये सोचते हैं कि परंपरा का निर्वाह करना, बदलते हुए नए ज़माने के साथ कदम मिलाकर चलना, नए सोच के साथ चलना कोई मुश्किल की बात है, मगर मैं ऐसा नहीं सोचता। परंपरा कोई बंधा हुआ पानी नहीं, बल्कि बहती हुई एक धारा है जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है। उसे अगर हम अपनी नासमझी से दूषित न करें और उसके कण कण में जो हमारी धरोहर समाई हुई है, उसमें जो पवित्रता है, उस पर श्रद्धा रखें, तो बदलते वक्त के साथ तालमेल रखने में दिक्कत कैसी? सवाल ही नहीं उठता। जब मैं सूरज से पहली बार मिला तो I thought he was very intelligent and his innocence and his purity is the best quality he has. To top that, he has the culture backing him. His family is totally into culture, and you know, and he is very hardworking on top of that. Very hardworking man. So this combination is an incredible combination to have. You know, everybody misses out on something. If he's intelligent, then he's not confident. You know, if he's hardworking, he's foolish. You know, things like that. But he has a combination of everything. I mean, some people have everything. They don't have the roots. They don't have the culture. He has everything in him. Once again, attracted by the grandeur of nature, Suraj chose the same location, Ooty, for this film as well. And the calm and serene environment of this enchanting place got charged with hectic activity. Echoes of melodious music cast a mesmerizing spell. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Let's start the fun. ठंडी ठंडी पुरवैया में उड़ती है चुनरिया, धड़के मोरा जिया, रामा वाली है उमरिया। दिल पे नहीं काबू, कैसा ये जादू। ये मौसम का जादू है मितवा, ना अब दिल पे काबू है मितवा। तेरा जिसमें खो गए, दीवाने से हो गए, नजारा वो हर सू है मितवा। Rajshri Productions has nurtured another tradition of introducing new talent on the screen. Madhuri Dixit, too, made her debut under Rajshri banner with Abodh 10 years back. जब मैं फिल्म अबोध कर रही थी तभी सूरज जी वहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे और मुझे कभी लगा नहीं था कि ये डायरेक्टर बन सकेंगे क्योंकि बहुत इंट्रोवर्ट, बहुत शाय और अपने आप में रहा करते थे. Been a very beautiful experience for me because after a long gap of nearly 8 years I'm working again with the makers who had introduced me. ऐसा लगता है कि he is very young and he is directing a film और जो मैंने सोचा भी नहीं था किसी को बोल सकेंगे कि प्लीज़ आप मुझे ये एक्सप्रेशन चाहिए और आप ऐसा ही कीजिए. मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था और आज वो मुझे बता रहे हैं कि नहीं, यू डू दिस एक्सप्रेशन एंड आई वांट यू टू कम फ्रॉम देयर. तो बहुत अच्छा लगता है. It is easy to direct a scene of Madhuri Dixit, but Tuffy is a different cup of tea altogether. It requires loads of patience to can one shot. Look down. An even more difficult task is to comfort the child. Just see, even in this serious scene where the child is required, he continues to cry. Despite distractions, the artists perform with patience and ease. सूरज का काम करने का तरीका देखकर ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में शायद ही कुछ गिने चुने लोग होंगे कि जो इतने परफेक्शन के साथ काम करते हैं. उदाहरण के तौर पर इसी फिल्म में एक टेक में मुझे टाइमिंग के हिसाब से परफेक्ट आना था और पहली बार वो टेक हर बार सब कहते थे वाह वाह वेरी नाइस, फर्स्ट क्लास, बहुत क्लियर, बहुत अच्छा हुआ. लेकिन हर बार सूरज भी पूछता था कि इज इट ऑलराइट, फाइन फाइन, बट वन मोर. उस पर से पता चलता था कि वो टाइमिंग अभी उसको मिला नहीं है जो टाइमिंग वो चाहता है. और बराबर 12वें टेक में जब मुझे भी दिल से फील हुआ कि आई थिंक दिस वाज द परफेक्ट टाइमिंग एंड सूरज के फेस पर मुस्कुराहट आई. आई थिंक इट्स फाइन, परफेक्ट, दिस वाज ओके. एंड वी ऑल्सो एग्री इमीडिएटली कि यस यू आर राइट, दिस वॉज द टाइमिंग. क्योंकि फिल्म में टाइमिंग और एक्सप्रेशंस इतने ज़रूरी हैं परफेक्शन के हिसाब से कि वही चीज़ जो है वो लोगों के दिल तक पहुंचती और छूती है. और जब तक नहीं छूती तब तक ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आर्टिफिशियल हो रहा है किसी तरीके से. मतलब अभी वो चीज़ अभी जमी नहीं. यहाँ तक जब तक चीज़ नहीं छूती तब तक ऐसा लगता है कि यार कुछ गड़बड़ है. तो वो चीज़ अगर डायरेक्टर जब तक यहाँ तक नहीं फील करेगा, ऑडियंस भी फील नहीं करेगी. एंड सूरज नोज दैट. आई थिंक जो सूरज का जो अप्रोच है काम करने का, मेरी बात तो सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत बात है और अच्छी बात है वो ये है कि ही इज़ सो वेल प्रिपेयर्ड. ही इज़ नॉट मेकिंग फिल्म लेफ्ट राइट एंड सेंटर एंड ही नोज दिस सब्जेक्ट. उनको अपना आने की सिचुएशन, शॉर्ट विजन, कहाँ ट्रॉली लगनी है, कहाँ क्लोजअप चाहिए. और बहुत लोगों को शायद हैरानी होगी बट वो बहुत ही बेहतरीन एक्टर भी है और वो चाहे बिल्कुल एक्टिंग करके नहीं बताता मगर वो बता देता है कि उसको क्या चाहिए. एंड आई हैव नेवर सीन हिम एंग्री, एजिटेटेड, जो कि एक बड़े डायरेक्टर के लिए ऐसा हो जाना बहुत
आसान सी बात है। और इट्स नाइस फीलिंग। खाना गरम ले आए हम, जल्दी लाओ भूखे हैं हम। धनिया जीरा मिर्च मसाला इसमें प्यार से है डाला। चख लो जरा ऐसा ना हो पीछे पड़े पछताना। वाह धिकताना 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 धिक धिकताना धिकताना धिकताना। खाना कल से तुम ही बनाना। धिकताना 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 धिक धिकताना 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 धिकताना। मैंने प्यार किया के बाद हम आपके हैं कौन आपकी दूसरी फिल्म है राजश्री के साथ। इस फिल्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये दूसरी नहीं, मेरी तीसरी फिल्म है राजश्री के साथ, क्योंकि मेरी पहली फिल्म राजश्री के साथ थी सारांश, जिसमें मैंने एक बहुत छोटी सी भूमिका निभाई थी साधु की। और उसके बाद मैंने प्यार किया और अब हम आपके हैं कौन। और सारांश में सूरज असिस्ट कर रहा था भट्ट साहब को, और एकदम छोटा सा बच्चा था, सेट पे घूमता रहता था, कंफ्यूज सा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टेड अपने काम में, हर चीज बहुत ध्यान से गौर से देखता हुआ। An observant eye, an ardent heart, and an analytical mind, and the assistance rendered by the technicians and the performance of the artist helps the director to transform his imagination into reality on the screen. This film is being photographed by the ace cameraman Rajan Kinage, the recipient of the National Award. How does he feel working with Suraj Barjatia for the first time? Let's hear him in person. सूरज जी के साथ पहली फिल्म है, लेकिन राजश्री के साथ ये 5वीं फिल्म है। तो काफ़ी गैप के बाद मुझे इन्होंने बुलाया, तो उसके बाद मुझे इन्होंने एक स्टोरी सेशन की, ये सब्जेक्ट सुनाया, तो सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे है ना ये इतनी काफ़ी लेंदी है सब्जेक्ट, तो गाने 12-13 गाने, उसके बाद इतना लेंदी सब्जेक्ट। तो मैंने सूरज जी को बताया भी, सूरज जी थोड़ा लेंदी बताया, तो उन्होंने ठीक है देखते हैं। तो उसके बाद पिक्चर शुरू हो गई, तो फर्स्ट हमने एक पहला आउटडोर किया। तो आउटडोर जिस तरह से सुनाया था, मैं सोचा नहीं था ट्रीटमेंट इस तरह से होगा पिक्चर का, तो ट्रीटमेंट तो बहुत कमाल का था। जब ये स्क्रिप्ट तैयार हुआ और मुझे बुलाया गया, तो मैं अंदर से एक रूहानी खुशी जिसे कहते हैं, एक खुशी जो इंसान समझ नहीं पाता और समझना चाहता है, बस वही हुआ मेरे साथ। मैं गया और 3 घंटे तक मैंने स्क्रिप्ट सुना और बस यूं एकटक सूरज को देखता रहा। कभी हंसा, कभी रोया, अंदर ही अंदर, कभी रुक नहीं पाया तो आंसू छलक भी आए। इतना खूबसूरत स्क्रिप्ट लगा ये। टोटलिटी में एक बहुत ही अजीबोगरीब एक्सपीरियंस रहा है हम आपके कौन। उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाना शुरू किया तो ही हैड अ फाइल, उनके सामने एक फाइल थी, इतनी कुछ मोटी थी। उन्होंने एक बार भी वो फाइल नहीं खोला। शुरू किया उन्होंने फिल्म के पहले शॉट के साथ, और सब आर्टिस्ट के डायलॉग के साथ, शॉट डिवीजन के साथ, आर्टिस्ट के कपड़ों के रंग, क्या स्टाइल है कपड़ों के, बैकग्राउंड सेट का क्या रंग है, पिलो केसेस, कर्टन्स, इन सब चीजों का रंग क्या है। उन्होंने पूरा मतलब स्क्रीन प्ले ऐसे सुनाया जैसे कि मैं फिल्म देख रहा हूं, हम आपके हैं कौन। हमें सिर्फ हमारा रोल नहीं सुनाया गया था जब ये फिल्म हम साइन करने गए थे या हमें बुलाया गया था, बल्कि सारी फिल्म के सारे जितने भी किरदार हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं और जितने भी सीन्स हैं, वो सारे हमें सुनाए गए थे उतनी ही डिटेल में जितने कि आमतौर पर प्रोड्यूसर या डायरेक्टर हमारे रोल हमको सुनाता है। तो ओवरऑल आई एम डूइंग दिस फिल्म बिकॉज ओवरऑल दिस इज एन एक्सीलेंट फिल्म। डॉक्टर साहब शेर सुना रहे हैं। इरशाद इरशाद। तो अर्ज किया है, वाह 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 वाह। बेटे शेर शुरू तो करने दे। हाँ, तो तस्वीर हो गया हूँ तस्वीर देखकर। वाह वाह वाह। तस्वीर हो गया हूँ तस्वीर देखकर, रूह खिल उठी है यार की तकदीर देखकर। वाह वाह वाह। कुछ मत पूछिए भाईजान, ये शेरो शायरी की अच्छी आदत लगी इनको। हाँ। क्या चाचा आप भी शेर वेर पढ़ते हो?
गजल आपके सामने रहती है और आप शेर पढ़ते हो। क्या कहा आपने? क्या कहा? ठहर बदमाश। कुछ सुना भाईजान? आजकल ये छोटे मियाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे। इधर आ, तेले भैया ते था, तेला भी निकाह पलवा दे। चाची जान नेकी और पूछ अल्लाह। हालांकि मेरा एक छोटा सा रोल है उसमें, लेकिन मुझे मालूम है कि पूरी फिल्म में मैं कहाँ हूँ और फिल्म कैसी जा रही है। और मैंने जब पूरी कहानी सुनी तो मतलब बहुत ही बेहतरीन कहानी मुझे लगी। आजकल जो आम फिल्में बन रही हैं, जिनके हम काफ़ी लोग बोलते भी हैं, मतलब हम लोग बातें करने जाते हैं कि ऐसी फिल्में क्यों बन रही हैं, अश्लील फिल्में या मारधार से भरपूर। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी इसकी कहानी, फैमिली एंटरटेनमेंट थी। हम आपके हैं कौन एक ऐसी सुखद अनुभूति है जिसका एहसास आदमी हमेशा करना चाहता है, मगर अच्छी चीज़ें हमेशा नहीं मिलती हैं। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी फीलिंग्स। तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो शायद दोबारा कैप्चर करने की कोशिश की जाए तो नहीं होगा, बिकॉज ये एक पिकनिक का एटमॉस्फेयर है, ये एक एक्सकर्शन का एटमॉस्फेयर है। और अच्छा काम तब ज़्यादा अच्छा होता है जब उसमें एन्जॉयमेंट उसके प्रोसेस में भी हो। ये पिक्चर हमें वापस हमारे कल्चर और हमारे रूट्स पे लेके आती है। जब आप ये पिक्चर देखें और आपके घर में अगर आप अपने माँ बाप से झगड़ के आए हो या अपने बहनों से मतलब कुछ जम नहीं रही है वगैरह, तो यू वांट टू गो बैक एंड सॉर्ट थिंग्स आउट। इट इज सच अ स्वीट फिल्म। थ्रू आउट द पिक्चर, इस पिक्चर में पहले तो कोई नेगेटिव कैरेक्टर है नहीं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हर पिक्चर में आप देखो कि एक्शन है और हीरो हीरोइन और विलन है। इस पिक्चर में ऐसी कोई बात नहीं। इट इज अ फैमिली फिल्म। अरे बस समदन जी, ये मन भी कितना बावरा है, जितना पाता है उससे ज्यादा पाने की इच्छा रखता है। एक दिन तो हमने आप सबको रोक लिया, अब जी चाहता है एक दिन और रोक लें। एक फैमिली फिल्म है जो हर फैमिली वाला एक जो फैमिली के जो ट्रेडिशंस हैं उनके साथ लेके बनाई गई फिल्म है, जो हम शायद भूल गए थे। तो बहुत ज़्यादा सटलती से ट्रेडिशन को वापस लाया गया है। ऐसा नहीं कि हम एक धार्मिक पिक्चर बना रहे हैं या हम एक सामाजिक पिक्चर बना रहे हैं। इट्स अ प्योर एंटरटेनर, इट्स अ प्योर कमर्शियल फिल्म विद एवरीथिंग इन इट, बट येट इट्स अ प्योर फिल्म। This is Renuka Sahana's first Hindi film, but she has already become a household name through TV serial Surabhi. She's also associated with Marathi theatre, and in Hum Aapke Hain Kaun, she is playing an important role. फिल्म में ये रोल बहुत अहमियत रखता है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट पिवटल रोल। और सब यानी जब भी मैं स्क्रीन पर नहीं होती हूँ तब भी भाभी की ही बातें होती हैं। मेरे रोल शुरू में मुझे लगा था पता नहीं कैसा होगा, लेकिन करते वक्त इतना मज़ा आया कि मतलब सूरज जी एक एक चीज़, मतलब आपका एक डायलॉग है एक सीन में, लेकिन वो आपको आकर पूरा सीन नरेट करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं थिएटर से होकर उस बात को समझ सकती हूँ। Amongst all the new as well as senior artists, Binduji happens to be a veteran. Let's hear what she has to say about Suraj's work. सूरज जी का ऑर्गेनाइजेशन देख के मुझे एकदम ताज्जुब लगा कि भाई हालांकि हम लोगों ने इतनी फिल्में की हैं मगर किसी डायरेक्टर ने इतना डिटेल वर्क नहीं किया। और उससे सबसे बड़ी सरप्राइज की बात मेरे लिए क्या है सूरज जी के लिए कि वो हर एक आर्टिस्ट के डायलॉग्स उनको जुबान है, हर एक सीन के, हर एक शॉट के, यानी ऐसे बोल जाते हैं कि जैसे अभी हम लोग आर्टिस्ट बोलने वाले, यानी सिर्फ मेरे ही नहीं
A to Z, माधुरी जी से लेके सलमान खान से लेके अनुपम खेर, जितने भी सारे आर्टिस्ट हैं, सबके डायलॉग्स इनको जुबान याद है। और ऐसा कभी मैंने नहीं देखा इंडस्ट्री में, हालांकि मुझे कम से कम 24 साल होने आए हैं इंडस्ट्री में, मगर ये बात तो मेरे लिए बहुत ताज्जुब की बात है कि ये इंसान इतने सब डायलॉग्स एक साथ कैसे याद रख सकता है। आए राम, कमर ही तोड़ दी। तो कमर ही तोड़ दी। आई एम सॉरी बुआ जी। सॉरी की बच्ची, तू यहाँ क्या कर रही है? सॉरी की बच्ची, सॉरी बुआ जी, सॉरी की बच्ची, सॉरी की बच्ची, तू यहाँ क्या कर रही है? हीरो क्या? ये यहाँ क्रिकेट सीखने आई थी मामी? मैं वो करूंगी तो ये बोलेगा Okay. ये मुझे क्रिकेट, ये खेल क्या हो गया? रोज रोज की आफत हो गई। भगवंती ऐसा मत कहो। कमर ही तोड़ दी। सॉरी बुआ जी। सॉरी की बच्ची, तू यहाँ क्या कर रही है? मामी जी, ये यहाँ क्रिकेट सीखने आई थी। क्रिकेट क्रिकेट, ये क्या खेल हुआ? रोज रोज की आफत हो गई। अरे बच्चे, इसमें मैं सलमान से प्रेम करती हूँ, और अगर उसे क्रिकेट पसंद है तो मैं क्रिकेट खेलती हूँ, उसे हलवा पसंद है तो मैं हलवा बनाती हूँ। और एक गाना है जिसमें मैं सलमान बनती हूँ, जहाँ मैं लड़के का किरदार कर रही हूँ, और उसमें ऐसा है कि सलमान मतलब सलमान से इतना प्यार करती हूँ मैं, तो जो भी सलमान करता है उसकी मैं नकल उतारती हूँ इस फिल्म में। और ऐसा इतना अच्छा महसूस हुआ है कि भी पूरी फिल्म में मैं हंस रही हूँ, और इस फिल्म में कोई नेगेटिविटी नहीं है किसी कैरेक्टर की भी। और इतने सारे आर्टिस्ट हैं, 16-17 आर्टिस्ट हैं हमारे, और इनके साथ इतने मिलनसार के साथ काम करना है, और बहुत ही अच्छा लगा है मुझे इस फिल्म में काम करने से। शकुंतला, आप जी देखिए मिस्टर, माय नेम इज नॉट शकुंतला, माय नेम इज रीटा, RITA, रीटा, अंडरस्टैंड? जी हमें अंग्रेजी कुछ कम समझ में आती है, लेकिन अभी आप जो कुछ भी बोली बड़ा मीठा लगा। Dilip Joshi is a well-known artist from the Gujarati theatre and TV serials. He had made a brief appearance in Maine Pyar Kiya. I must thank सूरज जी कि हम आपके हैं कौन में उन्होंने मेरे बारे में इतना सोचा, ये जो किरदार है वो मुझे दिया, मुझे मौका दिया ये प्ले करने के लिए, और इतने बड़े स्टार्स के साथ जैसे माधुरी जी है, अनुपम जी है। सो इट्स क्वाइट एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी। रोल जो सूरज जी ने कंसीव किया है वो इतना बढ़िया सा और प्यारा सा रोल है कि जैसे आमतौर पे हम देखते हैं कि हिंदी फिल्म में कि जैसे कॉमेडी को बहुत ही मतलब मॉबिड बना दिया, इतना मतलब झाड़ा कराते हैं ये लोग कि नहीं लाउड एकदम टोटली। इसमें इतना सा मतलब सो सटल एंड वेरी वेरी डाउन टू अर्थ है, एंड द क्रेडिट गोज टू ऑब्वियसली सूरज जी कि उन्होंने जो मतलब जो रखा है उसका जो मापदंड इतना बढ़िया रखा कि इट्स समथिंग जरा हटके। हेलो हेलो, नमस्कार सभी दर्शकों को, लल्लू प्रसाद जी का नमस्कार। थोड़ी देर में मैच शुरू होने वाला है और हम आपको अकोदे का हाल सुनाने जा रहे हैं। आसमान बिल्कुल साफ है, थोड़े थोड़े बादल है। मैंने प्यार किया, मेरी पहली फिल्म थी। सूरज जी ने मुझे मराठी फिल्में देखकर मुझे चांस दिया, बहुत बढ़िया चांस दिया, मेरा कैरेक्टर बहुत बढ़िया किया। इस पिक्चर में भी उन्होंने जो मेरा कैरेक्टर किया है एक अलग सा कैरेक्टर है। देयर इज नो बफूनरी कॉमेडी, कॉमेडी है लेकिन इस कैरेक्टर को एक इमोशनल शेड है कि जिस घर का नौकर है लेकिन घर वाले उसे नौकर नहीं कहते, एक घर का एक हिस्सा है, घर का एक पार्ट है, यही कहते हैं। इसलिए ये घर में कुछ ही आनंद की बात हो, सुख की बात हो या दुख की बात हो, ये इनके साथ शामिल होता है। और ऐसा कैरेक्टर है, एंड में बहुत जाके इमोशनल हो जाता है। हमें तो प्रेम ने अपनी कसम देकर बांध दिया है, मजबूर कर दिया है, लेकिन आप तो मजबूर नहीं है ना। भगवान आज कोई ऐसा चमत्कार करिए कि संसार में लोगों का आपके प्रति विश्वास और बढ़ जाए। भगवान। बेबी जी आप स्टूपिड। अजी सुनो, क्या हुआ? शक्कर की जगह नमक उठा लिया है। That's Priya Arun, a well-known artist from Marathi stage and films. But she too is new to Hindi films. इस रोल को जिस टाइप के ट्रीटमेंट दी है उस टाइप की ट्रीटमेंट
अभी तक किसी रोल को नहीं मिली जैसा मेरा रोल है। बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट दी गई है और हर तरफ से गेटअप्स और सब तरफ से मुझे बहुत अच्छी ट्रीटमेंट दी गई। और सूरज जी की तो बात ही अलग है, वो तो इतनी खूबसूरती से अपने आर्टिस्ट से काम निकलवाते हैं कि उनको मालूम है कि आर्टिस्ट से क्या चाहिए और आर्टिस्ट भी उनके साथ बहुत फ्री होकर काम करते हैं। मेरा तो ये एक्सपीरियंस है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। ये मेरे इन तमाम कलाकारों का प्यार है, स्नेह है मेरे लिए, जो वे इतनी तारीफ कर रहे हैं। मैंने अपना काम सिंसेरिटी से किया और यही कोशिश की कि मेरा यूनिट, मेरे टेक्नीशियंस, मेरे आर्टिस्ट एक सद्भावना भरे वातावरण में काम करें और खुश रहें। दरअसल ये जो तारीफ है, ये उसी खुशी का इजहार है। किसी बड़े डायरेक्टर ने कितना अच्छा कहा है कि जो कलाकार होता है वो चाहे कितना भी सीनियर क्यों ना हो, उसका स्वभाव एकदम बच्चे जैसा होता है, जिसे अच्छे रोल का झुंझुना देकर बड़ी सरलता से खुश किया जा सकता है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने कलाकारों को अच्छे मनपसंद रोल दे सका और उनका प्यार पा सका। और इस पिक्चर का कमाल है, 18 कैरेक्टर होने के बावजूद भी हर कैरेक्टर को जस्टिफाई किया इन्होंने, इवन फ्रॉम सलमान माधुरी टू दिलीप, और हर कैरेक्टर फिनिश है पिक्चर में। बहुत डिफिकल्ट है ये करना। Difficult task it is even to capture so many artists in one frame for a still photograph. इस फिल्म में इतने सारे किरदार हैं जो कि 18-19 मेजर कैरेक्टर्स हैं जो कि ऑलमोस्ट साथ काम कर रहे हैं। इन ऑलमोस्ट एवरी सीन सब कैरेक्टर्स एक साथ में हैं, तो एक साथ होने के साथ साथ सेट के बाहर भी वो एक साथ रहते हैं, तो हम सब में एक घरेलू सा संबंध आ गया। पहले शायद हम शूटिंग के बाद अपने अपने घर चले जाया करते थे, कभी किसी को फ़ोन नहीं करना, कभी किसी से मिलना नहीं, लेकिन हम कुछ लोग ऐसे एज अ फैमिली बन गए कि अब हर सेकंड संडे को हम लोग मिलते भी हैं। हम लोग की वाइफ्स, बच्चे सब इकट्ठे होते हैं और आप यकीन नहीं करेंगे कि उन हर मीटिंग्स में कॉन्वर्सेशन का टॉपिक सिर्फ होता है हम आपके हैं कौन और उसकी मेकिंग, कि सूरज कैसे बना रहा है, ये लोग किस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस तरह से सब लोग मेहनत कर रहे हैं, किस तरह से यूनिट का एक स्पॉट बॉय भी और प्रोडक्शन मैनेजर तक लेके इस फिल्म को अपना समझ रहा है। तो सबकी श्रद्धा इतनी है तो काम जाहिर है अच्छा होता ही। तो ये बहुत सी चीज़ें मिलके एक प्रोडक्ट को अच्छा बना देती, मेरा ऐसा सोचना है। Alok Nath is right when he says that the atmosphere is such that one can perform without pressures and tensions, and how it is even congenial to doze off amidst noise and activity. कई बार कई एक्टर एक बच्चे की तरह बहुत निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे इसमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं परफेक्ट नहीं करूँगा तब तक डायरेक्टर ये ओके करने वाला है ही नहीं। सो वो निश्चिंता हम आपके हैं कौन के इस फिल्म में मुझे हमेशा इसलिए लगी क्योंकि एक फिल्म में काम करने के बाद ये दूसरी फिल्म में उनके साथ कर रहा हूँ और मैं निश्चिंत हो चुका हूँ एक बच्चे की तरह। भैया मुझे पता है कि जब ठीक नहीं होगा तो ही विल नॉट ओके इट। Obviously, there will be retakes till the director okays the shot. Sometimes Suraj is not satisfied, while at times dance director Jay Borade is not happy. The cameraman too may detect a fault. The artist too may want to perform better. Hence the retakes. But sometimes unavoidable reasons too can lead to retakes. For instance, this mishap. And you can now see the okay shot. One shot is okayed and it is time to get ready for the next. Lights are placed in different positions. While trolley is laid on another occasion, the camera is mounted on the crane. The frame is decorated. This responsibility of decoration is shouldered by the reputed art director Bijon Das Gupta. He too has something interesting to say about working with Rajshrees. My knowledge of cinema was totally oriented to Western Hollywood films. Somewhere I realized that no, you have to be very Indian.
I learned that Indianness from the Rashi people. That's one thing I will openly say that the whole Indianness का जो root है, Indian culture का जो root है, वो मैंने राशि से सीखा. बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम. Behind me, you're seeing the atmosphere. और आपको कहीं भी इस फिल्म में हर फ्रेम में ऐसा एटमॉस्फेयर नजर आएगा और ऐसी इन्वॉल्वमेंट नजर आएगा जो आपको इस वक्त इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है. वो इन्वॉल्वमेंट इज बिकॉज ऑफ द राशि, बिकॉज सूरज बजातिया. ही इन्फ्यूजेस दैट थिंग ऑन यू टू पुट इन अ बेस्ट. वी मेड दिस फिल्म एंड हियर वाज अ मैन much more confident of what he was doing. He was absolutely sure about his script, his actors, his technicians. He was truly the captain of the ship. किसी भी फिल्म का माहौल फिल्म का एक अहम किरदार होता है. उसकी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और ये कैरेक्टर जितना जानदार हो उतना ज़्यादा फिल्म को एक रियलिस्टिक, एक नेचुरल फ्लेवर मिलता है. इस फिल्म में हमने वातावरण पर पूरा ध्यान दिया है. कहानी की ज़रूरतों के साथ साथ जो हमारी परंपरागत संस्कृति और सुरुचि है उसका पूरा उपयोग किया है हमने. नमस्कार. आइए. अरे कैलाशनाथ जी, चाल चाल है आपके. जीत रहो बेटा, कैसे हो? A good artist always aspires to put life into his role and character in every shot. Yet, they have their favorite scenes. Why don't we find out the favorite scene of each one of them? इस फिल्म में बहुत से सीन्स हैं जो बहुत अच्छे हैं. इसमें का एक पिक करना, आई थिंक जो सीन इमीडिएटली इस गाने के बाद आता है, जो सीन जहाँ द बॉय इज चेसिंग दिस गर्ल और दोनों बातें कर रहे हैं. एट अ पॉइंट व्हेन ही इज अबाउट टू कन्फेस कि he has feelings for me or whatever, so I just turn around and push him into the pool. ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है. It's a very nice scene, very romantic, very nice. मुझे इसके बारे में एक लव सीक्वेंस, इस गाने के बाद ही ये जो अभी हुआ दीदी तेरा दीवार दीवाना, उसके गाने के बाद में एक सीन था उन्होंने शूट किया था, तो मुझे अच्छा लगा शूट करते हुए. स्विमिंग पूल का जो सीन था जिसमें माधुरी भाग रही है, लड़का सामने से आके पकड़ता है, तो इसके बाद किसी और के बारे में सोचने की फुर्सत किसे है? आपसे. सिर्फ आपसे ही तो हम ये गुस्ताखी कर सकते हैं. क्यों? हम आपके हैं कौन? कह दूं? प्रेम बेटा, इम्तिहान की घड़ी आ गई है. चढ़ जा सूली पर. 1 2. कोई देख तो नहीं रहा? तुमसे जुदा होके जो गाना है, उसके पहले जो सीन है वो आई कम आके मैं जाके बिस्तर पे लेट जाता हूँ and there's a romantic scene there. That was the best scene and it came very naturally. जा रही हो? अब कोई बहाना भी तो नहीं जिससे मैं तुम्हें रोक सकूं. एक बात पूछूं? सच सच बताओगे? क्या? कल मुझे क्यों रोका? तो बात करनी थी. क्या? जैसी फैक्ट्री का उद्घाटन हो जाए मैं भाभी से अपनी शादी की बात करूंगा. और दूसरी बात?
दूसरी बात, मुझे वो क्रिकेट का सीन जो है, जो ओपनिंग फिल्म में शुरुआत में है, मतलब ये अपनी वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए राजेश जो मेरा किरदार है, अपनी वाइफ को रेणुका को इम्प्रेस करने के लिए एक हाथ से बैटिंग करने जाता है और वो क्लीन बोल्ड कर देती है उसे जी। तो और फिर वो बॉलिंग के लिए चले जाता है और बोलता है बॉल प्लीज, काफी नाराज हो गया है। और सलमान बोलता है बॉल प्लीज, उनको बोलता है बॉल प्लीज, और फिर रेणुका बोलती है बैट प्लीज, और कुछ ऐसे है। तो अच्छी सी एक बहुत प्यारा होम एटमोस्फेयर बना है। भाभी बॉलिंग करना पड़ेगा। मैं? भाभी इज्जत का सवाल है। नहीं नहीं प्लीज प्रेम। आसान है, यूं करके यूं करने का है। बस। दर्शकों, हमारे नए खिलाड़ी के लिए जोर से तालियां। तालियां, चलिए। हमारे नए खिलाड़ी बॉलिंग क्रीज की तरफ आ रही है। टंग टिंग 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 टिंग। वेलकम भाभी, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक भाभी जी। हिज लक इज बेस्ट भाजी। गलत बोल दिया। अंपायर रेडी? सबका ध्यान हमारे नए खिलाड़ी। बहुत अच्छा सीन जो मुझे लगता है वो देवर और भाभी के बीच वाला जो सीन है, जीप वाला, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। जिसमें भाभी कहती है ना कि मेरी मंजिल तो आ गई आपकी, उसके पहले वाले जो लाइंस हैं बहुत मजा आता है। चलिए अब थोड़ी सीरियस बात हो जाए। काका जी ने आपकी बागडोर अब हमारे हाथ में दे दी है। ये बताइए जनाब, लव मैरिज पसंद करेंगे या अरेंज्ड मैरिज? भाभी लव मैरिज जो आपको अरेंज करानी है। क्या? भाभी आई लव यू। देखा मुन्ना, आपके चाचा आपके पापा से 2 कदम आगे निकले। चुपके चुपके आपके लिए चाची भी ढूंढ ली। चाची मुन्ने को भी पसंद है, मुन्ने ने फोटो देख रखी है। क्यों मुन्ना? हाँ बोल बेटा। फोटो हमें भी दिखाइए ना। फोटो क्या भाभी, आपको तो शक्ल दिखा देते हैं। तो क्या आपकी प्यार की मंजिल रास्ते में है? रास्ते में भाभी, ऑन द वे। Lotus music has always been an important part of all Rajshri films. This film too can rightly claim to provide enchanting music and catchy songs. Ram Lakshman, the music director, acquaints us with how Suraj Barjatya got the music ready. सूरज बाबू में और बाकी अन्य लोगों में ये फर्क है कि वो जैसा स्टोरी नरेट करते हैं, बतलाते हैं, वही पिक्चर में दिखाई देता है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो इसलिए जो म्यूजिक का ऑर्केस्ट्रा, सॉन्ग का जो इंटरल्यूड म्यूजिक, उसमें क्या करने वाले होते हैं वो भी हमें पहले पता चल जाता। इसलिए आपको उनके पिक्चराइज्ड किए हुए गाने करेक्ट लगते हैं। इसमें एक कोई फेवरेट गाना कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस फिल्म में 14 गाने हैं, लेकिन हर गाना सीन की तरह है। गाना एज गाना नहीं है, जो काट के निकाल दो फिल्म से तो भी डजंट मेक अ डिफरेंस टू द फिल्म। गाने में भी स्टोरी है, गाने में भी सीन्स हैं, और गाने में भी स्टोरी प्रोग्रेस करती है। तो हर गाना इट्स वेरी ब्यूटीफुल। हर सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इन्हीं में मुझे जो एक मिस्टीरियस गाना है, दीदी तेरा देवर दीवाना, ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इट्स वेरी मिस्टीरियस, इट्स फुल ऑफ एनर्जी, और मुझे लगता है लोगों को भी बहुत पसंद आएगा ये गाना। दीदी तेरा देवर दीवाना, ओ दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, धंधा है ये उसका पुराना, अरे धंधा है ये उसका पुराना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। जब मैं लड़का बनती हूँ तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि भाई लड़का बनना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि जब लड़की हूँ तो मैं अपना मतलब ध्यान रखती हूँ सामने से,
लेकिन जब लड़का बनी तो पीछे से किसी को पता ही नहीं चलता था कि मैं लड़का बनी हुई हूँ। तो उसमें क्या होता था कि कोई भी आए तो मेरे हाथ लगा ले या मुझे धक्का मार के चला जाए, लड़का समझ के फिर बोले सॉरी मैडम। तो मुझे इतना अजीब लगता था कि भी मुझे आगे संभालना पड़ता, पीछे ध्यान ज्यादा रखना पड़ता था कि भी ये क्या हो रहा है पीछे। मेरा फेवरेट गाना इस पिक्चर में है तुमसे जुदा होकर। इट्स अ वेरी it's a sad song but picturized in a very different manner. It's basically the girl is leaving और लड़का उसे रोकना चाहता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता है, and even the girl wants to stop but she cannot do anything, but she has to leave. The love is there, the affection is there, and it's a very incomplete feeling, you know, that वो लड़की है और रहना चाहती है and they've just come close, and you know होता है कि last 2-3 दिन में, you know, when you come close to each other and then you have to part, that is very painful. But the way Suraj has picturized the song is the girl thinking of him and the boy thinking of her, but the cuts are not sad cuts. They are like with family, she's married and you know, she thinks of him that way, she's getting married to him. So that is very beautiful. मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, पल भर की जुदाई फिर लौट आना है साथिया, संग रहेगा तेरा प्यार साथिया, रंग लाएगा इंतजार। सर हम आपके हैं कौन के संगीत के बारे में आपका क्या विचार है? सर देखिए, अब आप पूछेंगे ताजमहल के बारे में मेरा क्या विचार है, कुतुब मीनार के बारे में मेरा क्या विचार है, आईफल टावर के बारे में क्या विचार है, जो चीज़ अच्छी है उसके बारे में तो सबका अच्छा ही विचार है। मैं अब इसमें बहुत कुछ बेवकूफ़ाना बात तो कर नहीं सकता। मुझे लगता है कि संगीत में इसमें सब कुछ है, मुंह पे चढ़ने वाले गीत हैं, लॉट ऑफ केयर एंड थॉट हैज़ गॉन इनटू द म्यूजिक। उसकी पिक्चराइजेशन पे बहुत सबसे बड़ी खासियत इस पिक्चर में ये है कि सब एक्टर्स जो हैं वो गाना गा रहे हैं, और गाना जो है वो प्रोग्रेशन है, इट्स नॉट एन आइटम, तो स्टोरी की प्रोग्रेशन है, स्टोरी के साथ जुड़ा हुआ है। और खूबसूरत गाने, वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई, या वो समधन और समधी का गाना भी कमाल का, ऐसी सिचुएशन जो पहले कभी नहीं आई होंगी। सबसे बड़ी घटना मेरे लिए है वो जो मैंने इस फिल्म में एक गाना गाया है, समधन समधी वाला। मैंने ज़्यादा गाने नहीं गाए फिल्म में, लेकिन 2-4 गाने गाए होंगे फिल्मों में, लेकिन इस फिल्म में पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक गाने के पीछे कितनी जान होती है। बिना कुछ मतलब एक जगह पर बैठे हुए हारमोनियम के सामने, बिना कुछ डांस किए, बिना कुछ नाच किए, बिना कुछ झटके मटके मारे, कुछ एक्सप्रेशंस बड़े बड़े दिए, मैंने एक गाने में इतना कुछ कह दिया। मैंने नहीं, मतलब मेरे ज़रिए मुंह तो मैं ही चलाता था, लेकिन जो थॉट पीछे से आई थी उसने इतना एक अथाह फीलिंग ऑडियंस के सामने जाहिर की है कि ऑडियंस मतलब बेहाल हो जाएगी मेरे ख्याल देखकर। और मुझे अंदर से इतना अच्छा लगा वो गाना गाते हुए, वो सीक्वेंस पूरा करते हुए, कि मेरे ख्याल से मैं उसको जिंदगी भर नहीं भुला पाऊँ। आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, गाने बैठे गाना सामने समधन है, हम कुछ आज सुनाए ये उनका भी मन है, गाने बैठे गाना सामने समधन है। मुझे 2 गाने बहुत पसंद हैं, मायनी माई और दीदी तेरा देवर।
एक तो क्योंकि सब गानों में से ये ही दो मेरे दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं. दैट इज बिकॉज दैट आई फील दैट दे आर वेरी कैची. वो मेरे साथ रहे हैं. माए नी माए मुंडेर पे तेरे बोल रहा है तागा, जोगन हो गई तेरी दुलारी मन जोगी संग लागा. मेरे ढोल सिपाहिया, रेणुका का जो गाना है लो चली में अपनी देवर की बारात, वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा उसको पिक्चराइज भी किया है. बहुत अच्छी ट्यून है, एक फोक ट्यून है वो. तो एक और एक वजह है कि मैं महाराष्ट्र होने की वजह से इस थोड़ा सा एक मराठी में लावणी ठेका जो रहता है उस टाइप का रिदम इस फिल्म में, इस गाने में है. तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है और रेणुका ने बहुत अच्छा किया भी है. मुझे लगता है कठिनाई मुझे मेरे गाने में हुई. वो जो गिरने वाला सीन है उसमें फिजिकली कठिनाई ज़्यादा है, लेकिन मुझे मेंटली गाने में ज़्यादा हुई. बिकॉज मैं यूज्ड टू नहीं हूँ गाने और नाचने. इट्स अ न्यू थिंग फॉर मी. मैंने थिएटर किया है जिसमें गाने वगैरह होते नहीं है वैसे हिंदी फिल्म के टाइप के. पहली बार मैं करने वाली थी और इतने मेजर फिल्म में. तो मुझे थोड़ा बहुत यानी हिचकिचाहट हो रही थी कि एम आई डूइंग इट राइट. इसलिए आई थिंक मुझे बहुत कठिन गया वो गाना. लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं ना बैंड बाजा ना ही बाराती, खुशियों की सौगात लेके. लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं. सबसे फेवरेट गाना है जो दीदी तेरा देवर दीवाना. इट्स हाईलाइट सॉन्ग. वो भी अच्छा है. और अपना जूते दे दो पैसे ले लो. लेकिन आप अगर उससे चॉइस करने जाए 14 गाने से ना, एक से ऊपर एक गाना है इस फिल्म में. मेरा सबसे फेवरेट गाना, हालांकि सभी गाने अच्छे हैं, पर मुझे मज़ा ज़्यादा इस गाने में आया जो अब शादी के वक्त जो किया गया है. प्रॉबेबली बिकॉज मेरा उस गाने में इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा है, मैंने वो गाना भी ज़्यादा सुना है और ये मेरा हिट गाना है, सबसे फेवरेट गाना है. जीजी हमने जूते क्यों चुरा रहे हैं? चोरी करना बुरी बात है. चुप, ये तो शगुन होता है. जूते लौटाने पर जीजा जी से पैसे मिलेंगे. अच्छा. दूल्हे की सालियो हरे दुपट्टे वालियो, दूल्हे की सालियो हरे दुपट्टे वालियो, जूते दे दो पैसे ले लो, जूते दे दो पैसे ले लो. दुल्हन के देवर तुम दिखलाओ ना यूं तेवर, दुल्हन के देवर तुम दिखलाओ ना यूं तेवर. पैसे दे दो जूते ले लो, पैसे दे दो जूते ले लो. जूते दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो. जूते दो गाने में उन्होंने जो ट्रीटमेंट दिया है, लड़का लड़की भागते पीछे जूता लेके, अरे बहुत कमाल का है. और इतना रोमांटिक लड़का सूरज बड़जात्या, मैंने राज कपूर के बाद यही लड़का देखा. कमाल का रोमांटिक लड़का है. जूते दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो.
सबसे फेवरेट तो मैं कहूँगा दिखता ना है, क्योंकि एक वो गाने को लेकर के इतने सारे मतलब जो सिचुएशंस हैं वो एक साथ में, मतलब हर एक सिचुएशन में ये दिखता ना है, एंड इट इज सो वेल ब्लेंडेड विद ईच एंड एवरी सिचुएशन कि हर एक बार आप सुनेंगे है एक ही मतलब उसके जो वर्ड है दिखता ना, लेकिन हर एक अलग अलग सिचुएशन में जिस तरह उसको यूज किया गया है वो बहुत ही बेहतरीन है। पहली किरण जब से उगे भाभी मेरे तब से जगे, सबका पूरा ध्यान धरे वो शाम ढले तक काम करे। पहली किरण जब से उगे भाभी मेरे तब से जगे, कल तक रहा इस छांव से मेरा बचपन अनजाना। दिखता ना हे दिखता ना हे दिखता ना। एक्चुअली बड़ी फनी बात है कि जब मैंने गाने सुने थे तो सब अच्छे लगे थे, लेकिन जब शूटिंग होती है तो लगता है ये गाना बेहतरीन है। जैसे दिखता ना लगता है जब हम उसकी शूटिंग कर रहे थे लगता था श्योर हिट है। फिर वो करने लगे समधी समघन वाला करने लगे तो हमको लगा ये बेस्ट गाना है। अभी आजकल हम लोग दीदी तेरा देवर दीवाना कर रहे तो लगता है ये बेस्ट है। तो मैं ये कहूँगी कि गाने अपने आप में इतने बढ़िया हैं, हर गाना लगता है कि ये बेस्ट है। हर गाना ऐसा लगता है कि आपको आपके दिमाग में चढ़ जाता है आपके, और वर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं। मतलब खूबसूरती ये है कि वर्ड्स खूबसूरत है, सिंपल है, जो लोग इजीली आपके ज़बान पे चढ़ जाते हैं। दिखता ना 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 दिखता ना। आज पड़ेगा सबको गाना। दिखता ना 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 दिखता ना। भाभी मेरी तुम्हें थैंक यू, मिलकर सभी कहे थैंक यू। तरस गए थे जिसको नैना आज हुआ सच वो सपना। अल्लाह करे तू भी मिजाज। हम आपके हैं कौन is not only a love story but also a festival of music. So many songs and all unique in their own way. And why not, when in addition to the producers, director, lyrics writer, and the singers too have contributed immensely. Lata ji always sings by keeping in mind the character on the screen. That's the reason why her songs are so appealing. चॉकलेट लाइम जूस आइसक्रीम टॉफियाँ पहले जैसे अब मेरे शौक है कहाँ। गुड़िया खिलौने मेरी सहेलियाँ अब मुझे लगती है सारी पहेलियाँ। ये कौन सा मोड़ है उम्र का। इस फिल्म में एक गाली नहीं है, कोई मारता नहीं है, ना मैं रिवॉल्वर देखा ना चाकू देखा। हर आदमी खुश है, हर आदमी गाना गा रहा है, नाच रहा है, और इस पे और एंड इट्स ऑल विवन इनटू द स्टोरी सो वेल सो नीटली। फिल्म तो 100% कामयाब होगी, क्योंकि मैं हमेशा इस बात पे यकीन करता हूँ कि जो भी चीज़ मन में श्रद्धा लेके और उतनी मेहनत से उतने टैलेंट से की जाए उसको कोई नहीं रोक सकता है। उसमें उसके रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बारे में मुझे पूरा यकीन है कि ये फिल्म चलेगी ही। सब लोगों को ये फिल्म डेफिनेटली अच्छी लगेगी। जबरदस्त हिट है। सूरज बाबू का एक स्टाइल बहुत अच्छा लगता है कि
वो सोचते हैं हमेशा कोई नई बात। तो आप देखेंगे इस फिल्म में आपको जो कुछ भी देखने मिलेगा वो आपने पहले कभी नहीं देखा। हम आपके हैं कौन में फुल फैमिली फिल्म है, कॉमेडी, इमोशन सब जो हमारी फिल्म में है। तो मैं कहूँगी लोगों के लिए वो ये फिल्म लोग थिएटर आके ही देखें। Priya Arun is right. This film is meant to be seen for full enjoyment on the large screen. Hard work of so many people is involved. The lavish settings and dances. The enchanting locales, the vast expanse of cinemascope, and the magic of 4-track optical stereophonic sound. It's entertainment par excellence, brought to you by Rajshri. हमको ये इशारों में कहें हम थम के यह घड़ियां गुजारें। For the pleasure of the viewers, it has been decided that the video cassette of this film will not be released as long as it is being shown in theatres. See it, but only in the theatre. This is the fervent appeal of all the artists and technicians of this film. A fervent appeal to the cinegoers. We, the artists and technicians associated with the making of the movie Hum Aapke Hain Kaun, earnestly appeal to the cinegoers that for the full enjoyment of the movie, it should be seen on the big screen in the cinema hall only. The video cassettes of the movie will not be released simultaneously with the theatrical release, and thus each and every video cassette which surfaces clandestinely will be unauthorized, illegal and pirated, for which the person involved in its manufacture and circulation and possession will be liable for prosecution, losses and damages for breach of copyright, which is held by the producers of the movie, Rajshri Productions Private Limited. The official video cassette, only for home viewing, will be released by the producers Rajshri Productions Private Limited at a suitable date, which will be announced later, and it would be a collector's item and a proud possession for one and all. We all have put in our best efforts and hard work in the production of the movie, Hum Aapke Hain Kaun, to make it a memorable experience for the cinegoers. We therefore request all the cinegoers to avoid seeing the movie by means of a video cassette or cable TV and see it on the big screen only to get the sumptuous entertainment and enjoyment. Now we present to you those scenes which were deleted from this film at the time of the final editing. When you see the film, try to imagine where these shots were and how imaginatively they have been cut without disturbing the continuity of the film.
देखूं? सिर्फ महीने 1.5 महीने की बात है। अगर बेटा हुआ ना तो मैं राजेश से हीरो का सेट लूंगी, ना तो मैं भी लूंगी। भाईजान, अरे ओ भाईजान, कमर कस लीजिए, घोड़े बनने के दिन आए हैं। ताई जी, आपके मुंह में घी शक्कर। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई भैया और भाभी को, बधाई हो बधाई। During the making of the film, all the artists, technicians and workers work together like a family. The film is complete and it's time to part. Sweet and sour memories linger in their minds and a dream to come together once again for a new film. मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है। पल भर की जुदाई फिर लौट आना है साथिया, संग रहेगा तेरा प्यार साथिया, रंग लाएगा इंतजार। तुमसे जुदा होकर मुझे दूर जाना है, तुमसे जुदा होकर मुझे दूर जाना है। पल भर की जुदाई फिर लौट आना है साथिया, संग रहेगा तेरा प्यार साथिया। We are yours and will remain yours forever.